So, students, we'll start chapter number 4 today, that is accounting ratios. Accounting ratios डिस्कस करने से पहले हम वर्ड यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेशियो. What is ratio? Ratio जो है that is we can say an arithmetical expression between two or more variables. Rather two variables. Two variables. ये आपने ratio जो है वो अपने चैप्टर कहीं 5th 6th 7th में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा. Ratios का मीनिंग वही है. It is a relationship, arithmetical relationship between two variables, and those two variables must be say interrelated variables. इंटर रिलेटेड आपस में उनका रिलेशन हो. तो जैसे आप लोग छोटे होते पढ़ रहे होंगे इन अ क्लास ऑफ से 50 स्टूडेंट्स, 30 वर बॉयज एंड 20 वर गर्ल्स सपोज. तो रेशियो ऑफ बॉयज वर्सेस गर्ल्स इज 3:2 because those two variables are interrelated variables. Suppose we want to know what is the strength of the boys and what is the strength of the girls in a particular school or class, वो हमारे काम की बात है. Interrelated variables. और in a school of say 1000 students, 50 number of teachers are there. तो ratio is 20:1 suppose. Interrelated variables, है ना. Number of schools and number of singers in a state, these variables are not interrelated variables because हम इसको जो है वो कोई इस पे इससे कोई हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इससे हम कोई जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. बोथ द वेरिएबल्स आर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है उनका. ठीक है. रेशियो जो है दैट इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू इंटररिलेटेड वेरिएबल्स, दैट इज रेशियो. एंड व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? Accounting ratio is that ratio when we take out the data from financial statements of a business to calculate the ratios. For calculating the ratios, when we take the variables from financial statements or books of accounts, that is the accounting ratio. ठीक है. Done. Should I continue? Accounting ratios क्या हुई? It is the term which is used when we calculate the ratios and the data which we take from the books of accounts, say financial statements, statement of profit or loss, balance sheet or anything else. वहां से हम डाटा जो है वो ले रहे हैं. That is accounting ratios. और एक और टर्म है that is the ratio analysis. Ratio analysis. Ratio analysis means analyzing the books of accounts using accounting ratios as a tool. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. There are various tools of financial statement analysis. कंपैरेटिव था, कॉमन साइज था, ये हमने पढ़ लिया था. और तब भी बात हमने करी थी अकाउंटिंग रेशियोज भी जो है वो भी एक टूल है टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो व्हेन वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स on the basis of accounting ratios, that type of analysis is known as ratio analysis. Ratio analysis. Done. Term ratio is clear. Term accounting ratio is clear. And ratio analysis is also clear. Ratio जो है वो overall ratio है ना, जो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, कहीं और भी पढ़ते हैं. अकाउंटिंग रेशियो वो है जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं. when we take the items from the books of accounts, financial statements. And ratio analysis is a tool to analyze the financial statements, calculating the ratios. Done. ठीक. अब बेनिफिट क्या है रेशियोज निकालने का? रेशियोज निकालने का जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो ये है कि ये सिंपलिसिटी लेके आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बिकॉज हमने एक लास्ट ईयर 11th में टीचर करा था that understandability, qualitative feature of accounting. Understandability means it is the responsibility of the accounting staff to present the data so that it can be understood by a common man, by a layman. तो अगर वो जो कॉमन पर्सन है, अगर वो यूजर जो है वो डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेगा तो शायद वो कंक्लूजन ना ड्रॉ कर पाए, है ना. अगर अकाउंटिंग स्टाफ निकाल के देगा उसको डाटा तो वो जो है वो इजीली प्रेजेंटेबल होगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा वो डाटा जो है. तो इसके लिए हम रेशियोज को यूज कर सकते हैं. सपोज मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट रेशियो जो है ना एक फर्म की 10% है और एक की 11% है. कितना कितना इजी है ना मेरे लिए. सपोज मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ी, मेरे को पता ही नहीं क्या चीज़ है ये. एक जो फर्म है वो 10% प्रॉफिट कमा रही है, एक फर्म जो है वो 11% कमा रही है. कितना इजी है कॉमन पर्सन के लिए देखना
कि कौन सी फॉर्म अच्छी है, कोर्स 11% वाली अच्छी है नहीं। फिर मैं एक और फॉर्म ले आया कि एक और फॉर्म है जो वो 14% कमा रही है, अब ये फॉर्म अच्छी है क्योंकि उससे भी अच्छी है ये वाली फॉर्म, बेस्ट फॉर्म ये बन गई, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज 14%। समझ आ रही है बात? सिंपलिसिटी लेके आती है अकाउंटिंग रेशियोज जो है भाई। एक इसकी ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक तो इसकी ये भी है, ये है कि जो अकाउंटिंग रेशियोज है ना वो कैलकुलेट होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, और जितनी भी सारी लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या अकाउंटिंग की, आप बोलो अकाउंटिंग की, जैसे वो विंडो ड्रेसिंग टर्म हमने पढ़ी थी, एक बायसनेस हमने टर्म एक पढ़ी थी, हिस्टोरिकल कोस्ट दैट नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट रिकॉर्ड जो है वो नहीं करता है, वो सारी जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स अकाउंटिंग की हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हैं, वो सारी जो है वो रेशियोज की बन जाती हैं, बिकॉज अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली और फ्रॉम द अकाउंटिंग ओनली। आई होप आई एम क्लियर। अगर अकाउंटिंग करते वक्त विंडो ड्रेसिंग हुई है वो लिमिटेशन अकाउंटिंग रेशियोज में भी आ जाएगी। अगर अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग जो स्टाफ है वो बायस्ड हो गया, वो लिमिटेशन इसकी बन गई। अगर वहां पे हम नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी नहीं हो रहे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ये एनालिसिस कर ही वहां से रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर रहे हैं। तो विच एवर वट एवर आर द लिमिटेशंस और द ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेम ड्रॉबैक्स आर देयर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज आल्सो, बिकॉज रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग ओनली, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। चल रहा है पता? ठीक है। और रेशियोज का एक और फायदा क्या है, मैं फायदे भी आ रहा हूँ, मैं दोबारा मेरिट पे आ रहा हूँ कि ये कंपेयर करना इजी कर देती है। एक तो सिंपलिसिटी लेके आती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी लेके आती है, एक साथ में कंपेयर करना बड़ा इजी है। ये तो हमने यहाँ भी कंपेयर किया, फर्म ए 10%, फर्म बी 11%, फर्म सी 14%, विच फर्म इज बेटर? फर्म सी इज बेटर, 14% के साथ जो है ये अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है। और सिर्फ कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन नहीं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी पॉसिबल है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन यू नो क्या होता है, याद है? इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन याद होगा। इंटर फर्म कंपैरिजन मीन कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स, इंटर फर्म बिटवीन टू डिफरेंट फर्म ऑफ कोर्स फॉर द सेम पीरियड। इंट्रा फर्म मीन्स कंपैरिजन जो है दैट इज ऑफ नॉट ऑफ टू फर्म्स बट within the firm only, within the firm of same of two different periods। suppose अगर मैं 2020 की सेल LG को सैमसंग के साथ कंपेयर करूं, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर मैं LG को 2020 और 2021 में कंपेयर करूं, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये हमने किया हुआ है पहले, ठीक है। When two different firms are compared for the same period, that is inter-firm comparison. When a firm compares itself with itself only, two different periods, that is intra-firm comparison. Done? ठीक है। तो जो कंपैरिजन है ये भी पॉसिबल बनाती है अकाउंटिंग रेशियोज या रेशियो एनालिसिस, क्योंकि इससे यूजर जो है वो देख सकता है कि वेदर वो इस बिजनेस के साथ अपना डिसीजन ले या ना ले। एंड यू नो वेरियस यूजर्स आर देयर, बैंकर्स आर देयर, गवर्नमेंट इज देयर, टैक्सेशन अथॉरिटीज आर देयर, लैंडर्स, क्रेडिटर्स दे आर देयर, डिवेंचर होल्डर्स आर देयर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, वेरियस यूजर्स आर देयर जो डिसीजन लेते हैं अपना ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। डन? ठीक। अब as far as chapter is concerned, yes, in this chapter we study about different ratios. अगर हम मेन क्लासिफाई करें रेशियोज को तो we have four main classifications of ratios. One is liquidity ratios, second is solvency ratios, third is activity ratios, and last one is profitability ratios. Four ratios are there. अब इसमें आगे रेशियोज हैं, ये तो मेन क्लासिफिकेशन है रेशियो, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 4-5 है, इसमें भी 4-5 है, इसमें 5-6 है, कुल मिला के आपके पास 17-18 रेशियोज हैं जो सिलेबस में है।
लेकिन सारी की सारी जो है इन्हीं चार में आ रही है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी रेशियोज की, लिक्विडिटी इज अ टर्म रिलेटेड विद द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, हमने सोल्वेंसी वर्ड पढ़ा हुआ है क्या पहले? सोल्वेंसी वर्ड पढ़ा हुआ है, याद है किसी को? इंसॉल्वेंट याद है? यस काव्या? फिर सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेट्स पे कर सकता है, और इंसॉल्वेंट वो होता है जो डेट्स पे नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है बेटा, इंसॉल्वेंसी और सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज टैक्स। Solvent is a person who is able to pay its tax. Solvency. Now I am not asking about solvent or insolvent. I am asking about solvency. Solvency means the situation when the person is able to pay its tax. Solvent, solvency, है ना? अब solvency जो है, अब पर्सन ने अपने जो डेट्स हैं वो पे करने हैं, शॉर्ट टर्म में भी पे करने हैं, लॉन्ग टर्म में पे करने हैं। हम बात कर चुके हैं ना, करंट लायबिलिटीज की होती हैं और नॉन करंट की होती है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, इट मींस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस वेदर द फर्म इज एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज और नॉट। Whether the firm is able to pay its current liabilities in time or not, that is liquidity. When we say whether the firm is able to pay its non-current liabilities in time or not, उसको हम solvency बोल देते हैं। अकेला solvency मतलब long term solvency, अकेला solvency लिखा हो long term solvency। अगर वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोले तो लिक्विडिटी। डिफरेंस सिर्फ वही है कि जो अगर 12 महीने की हमने देखनी है सॉल्वेंसी उसकी, तो वो लिक्विडिटी रेशियो से कैलकुलेट होगी। अगर हमने 12 महीने से बाद की देखनी है तो उसकी जो रेशियो है वो सॉल्वेंसी के हिसाब से होगी कैलकुलेट। आई होप आई एम क्लियर। Liquidity means the ability of the firm to pay its short-term obligations, short-term liabilities, current liabilities. ठीक है? Solvency, long-term solvency means the ability of the firm to pay its long-term liabilities, long-term obligations. Here we are talking about only liquidity ratios. Only liquidity ratios means the ability of the firm to pay its current obligations, only short-term obligations. इसमें जो हम रेशियो डिस्कस करेंगे वो दो होंगी, वन इज करंट रेशियो, अदर इज क्विक रेशियो। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। First is current ratio. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Please don't write short forms. मैंने एक मैसेज भी किया था आपको, किसी बच्चे ने शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई थी। ये आपने यूज नहीं करनी है, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द टीचर्स बिकॉज वी वांट टू सेव टाइम। आपको पूरा लिखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दिस रेशियो shows the relation between current assets and current liabilities, means whether the firm is able to pay its current liabilities out of current assets or not. Fine. And this ratio is expressed in pure form. Pure form कौन सी होती है? ये वाली form, x is to y, 2:1, 5:3 प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। अदरवाइज देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द रेशियो। परसेंटेज एक और वे है, फ्रैक्शन एक और वे है, ये हम डिस्कस करेंगे। करंट रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज shown in pure form 3:2, 2:1 like this, and its standard ratio. Standard ratio means ideal ratio, benchmark जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, that is 2:1, 2:1, 2 means current assets and 1 means current liability. Fine. It means for every 1 rupee current liability, the business must possess rupees 2 current assets. Then only we can say the business is in good position short term wise. 2 current asset, 1 current liability. If suppose business has to pay 1 lakh rupees current liability, the business must possess 2 lakh rupees current assets, because current assets can't be immediately converted into cash, can't be immediately. We say the current assets are the assets which are converted into cash within a period of 12 months, suppose, over operating cycle.
राइट। तो इसके लिए हमें ज्यादा करंट एसेट्स रखनी पड़ती हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। इसे हम करेंगे कंटिन्यू आगे, आज टाइम नहीं है। इसी को हम करेंगे कंटिन्यू कल, और कल ही आपके जो सम्स हैं वो डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। इसके फार्मूला अभी और भी हैं एक दो लिखवाने वाले, वो लिखवा के उसके बाद सम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। अभी आपको डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जितना आज किया है उतना। अभी लेक्चर ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कल कंप्लीट होगा बेटा। है डाउट किसी को? शुड आई एंड द मीटिंग?